everyone. My name is Priyanka. Welcome to our channel IS Cafe. Let's begin with today's decoding session of the Hindu, 18th of July 2023. From today's newspaper, we will be discussing about the project Cheetah. देखो, in the yesterday's discussion, we discussed about the Cheetah with respect to the prelims examinations that the GS paper 3 environment section deals with certain species which are often asked in your prelims paper. And today the complete editorial is given on the project Cheetah, so it becomes very important for you to read everything about it. Then Right to Information Act, both the risk and benefit in the rupee dirham settlement system, and at last the Uniform Civil Code. Once we complete all these topics, we will provide you a topic to write an essay. Okay, now let's begin our today's discussion. But before we begin, I would like to announce it once again that we had already started the complete UPSC course on the same channel, and already the 2 lectures of geography has been released. So जिन students ने नहीं देखा है, please check those lectures. They are based on the basics of the climatology, and today onwards you will get the chapters on the atmosphere from the NCERT in the next chapter. So this is how we are providing you daily a lecture, a chapter with respect to the geography, climatology, and gradually we will make you complete all the syllabus through this videos. Correct? So please subscribe our channel, like and share. Now let us begin that cheetahs. How cheetahs are faring in India. This is an editorial given in today's newspaper. फर्स्ट इसको आप समझो कि इंडिया जो है ना, आप छोड़ो इंडिया को, छोड़ो ये देख लो कि जो चीता होता है मोस्टली आपको मेजरली 2 जगह दिखेगा. एक अफ्रीकन रीजन में आपको दिखेगा और एक एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वहां. आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माय हैंड राइटिंग. ओके, so what I want to say that cheetahs are mostly present in 2 areas. One is in the Africa region and second is in the Asia region. जो एशियाटिक चीतास है, they are totally extinct in India. मतलब इनका कोई वजूद अभी इंडिया के अंदर नहीं बचा है और सिर्फ कुछ certain cheetahs, I think there is only one which is present in the Iran. So India has requested Iran that not only one but there are few cheetahs present in Iran. I have to check this data. So India has requested Iran to send the cheetah to India so that we could work on it, we could increase their number, and ultimately the number of cheetahs will increase in Asia. But Iran denied it. Then we went to Africa, and Namibia and India signed a memorandum of understanding to reintroduce the African cheetah in India. तो डील क्या हो गई कि जो अफ्रीकन चीता है वो होगा इंडिया में इंट्रोड्यूस. ठीक है, अब अफ्रीकन और जो एशियाटिक चीता है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है. चीता जो होता है एशियाटिक वाला, ठीक है, ये स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू व्हाट अफ्रीकन चीता. लेकिन इनकी जो गर्दन होती है, जो नेक होती है, वो बहुत ही पावरफुल होंगे. लेग्स इनकी थोड़ी सी स्लेंडर होते हैं. दिस इज द वर्स्ट डायग्राम आई कुड मेक बट यू कैन अंडरस्टैंड. इनकी जो बॉडी है वो ये हो गया आपके पास एशियाटिक चीता. ठीक है, इनकी बॉडी छोटी होती है एज कंपेयर टू द अफ्रीकन चीता. तो अफ्रीकन चीता की जो बॉडी होगी कंपैरेटिवली बड़ी होगी और इनकी नेक पावरफुल होती है. इसका कोटिंग जो होती है वो मोटी होती है. इनकी जो कोटिंग है थोड़ी सी पतली होती है. एशियाटिक चीता जो है ऐसे माना जाता है कि फास्ट रन करते हैं एज कंपेयर टू अफ्रीकन चीता बिकॉज ऑफ देयर स्लेंडर लेग. ठीक है ना, एशियाटिक चीता जो है दे आर हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज दैट ओनली एग्जिस्ट इन द ईरान. जो सिर्फ कहाँ है, ईरान के अंदर है. लेकिन इंडिया के अंदर 1952 में वो एक्सटिंक्ट हो गए थे और 1947 आजादी के टाइम पे कुछ जगह पे ऐसा देखा गया था कि चीता जो है प्रेजेंट है. तो अब हम आ जाते हैं कि इंडिया ने ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नामीबिया के साथ टू रिलोकेट द अफ्रीकन चीता इन इंडिया. बट व्हाई चीता तो सिग्निफिकेंट, जब खत्म हो गए तो खत्म हो गए ना, क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं फालतू में. एक
कितने केसेस आते हैं कि शेर ने इंसान को खा लिया, जब घरों में घुस गया, या फिर दे आर कमिंग इन अवर एरिया, देन व्हाई वी आर trying to bring such harmful animals? Because certain species are umbrella species. जब आप environment पढ़ोगे, you will study about the keystone species, about the invasive species, about the umbrella species. तो ये वो स्पीशीज होती है, अगर पूरी तरह से ये तो खत्म हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, इनके जो प्रे होते हैं जैसे हिरन वगैरह हो गया, उनका नंबर बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो गया तो वो जो ग्रास वगैरह है उनको बहुत जल्दी से खाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा क्रोनोलॉजी है, जो फूड वेब है, जो फूड चेन है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और पूरा आपको एक अल्टीमेटली एनवायरमेंट में बुरा इफेक्ट दिखेगा। दिस इज द रीजन दैट देयर आर सर्टेन स्पीशीज जिनका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब इंडिया में उन चीता को इंट्रोड्यूस किया, वो कहाँ करा गया, कूनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, कल की लेक्चर्स में ये कर चुके हैं। तो कूनो नेशनल पार्क, देखो एक रिवर आपने पढ़ी होगी, चंबल रिवर। ओके, so that is a river which is a चंबल रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरी है जो होती है आपके पास कूनो रिवर। ये कहाँ पे है, आपके पास मध्य प्रदेश में है। इस रिवर के ही ऊपर आपके पास बना हुआ है क्या, कूनो नेशनल पार्क। और यहीं पे डिसाइड किया है कि जितने भी अफ्रीकन चीतास को हम रीइंट्रोड्यूस करेंगे वो कहाँ करेंगे, कूनो नेशनल पार्क में। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज दिस नेशनल पार्क। देखो प्रोटेक्टेड एरिया, कोई भी जो एनिमल्स होते हैं उनको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करोगे भाई, या तो मैं क्या करूं, इंसेक्ट टू प्रोटेक्शन कर दूं, या मैं क्या कर दूं, एक्सेट टू प्रोटेक्शन कर दूं। इंसेक्टो का मतलब क्या होता है कि जिस एनवायरमेंट में वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं वहीं पे, जैसे जंगल के अंदर, फॉरेस्ट जो है, इन सब में आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट। एक्सेटू मतलब लैब के अंदर, आउट ऑफ द नेचुरल हैबिटेट जो है वो आपका पास एक्सेटू हो सकता है। तो इसी तरह से जो प्रोटेक्टेड ये होते हैं, जो प्रोटेक्टेड एरिया, मोस्टली ये तीन तरह के आपको मिलेंगे। एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगे आपके पास, बायोस्फीयर रिजर्व होंगे, और आपके पास क्या होंगे, नेशनल पार्क होंगे। कुछ और भी होते हैं जैसे कि कम्युनिटी रिजर्व है ना। बट अभी हमारा फोकस किसके ऊपर है, नेशनल पार्क के ऊपर है। अगर आप कंपेयर करते हो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और नेशनल पार्क से हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम चीता को लेके आ रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में, तो वहां पे क्या है आपके पास, एक नेचुरल हैबिटेट, जंगल में जिस तरह से उनको रहना पसंद है उसी तरह से हम उनको वहां पे छोड़ रहे हैं, ताकि वो वहां पे सर्वाइव करे, अपना जो नंबर है उसको इंक्रीज करे। क्लियर है। अब लेकिन अब ये न्यूज में इतना क्यों आया भाई, ठीक है चीता खत्म हो गए थे, कोई बात नहीं, ईरान ने मना कर दिया तो हमने अफ्रीका से ले लिया, आ गया इंडिया में, कहाँ दिक्कत आ रही है। व्हाट इज द कंसर्निंग थिंग, कंसर्न ये है कि सर जो चीता हम री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी डेथ के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव था उनका नंबर इंक्रीज करना, वो तो मरे जा रहे हैं, है ना। तो मोर डेथ ऑफ चीता हैव बीन रिपोर्टेड लास्ट वीक फ्रॉम द कूनो नेशनल पार्क। और एक एक्सपर्ट कमिटी ने बोला कि हमको एक मेडिकल रिव्यू करने की जरूरत है बहुत ही जल्द। तो दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट चीता है क्या। प्रोजेक्ट चीता में हमने चीता को रीलोकेट करने की कोशिश के लिए वादा किया था कि नेक्स्ट डिकेड में हम 510 एनिमल्स लेके आएंगे, जिसमें से 35 चीता को हम स्टैब्लिश करेंगे। 35 चीता कम से कम एक ऐसी सस्टेनेबल पॉपुलेशन है जिसके बाद वो खुद अपने आप में सेल्फ सस्टेन हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, साउथ अफ्रीका और ये जो नामीबिया की जो चीता है, वो क्या होते कि एक फेंस रिजर्व एरियाज में उनको रखा गया प्रोटेक्शन में। लेकिन इंडिया का प्लान क्या था कि हम उनको एक नेचुरल अनफेंस वाइल्ड कंडीशंस में रखेंगे, जिस तरह से उनको रहना पसंद है कि शेर होता है, चीता है, तेंदुआ है, लाइक जंगल में वाइल्ड भी घूम रहे हैं, कोई इससे डर नहीं रहे। तो हम इंडिया का प्लान क्या था कि हम इनको इसी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ही बुरी बात है कि 11 ट्रांसलोकेट किए गए थे चीतास को, उनमें से टू वाइल्ड विद 4 इंच स्पेशल डिजाइन 1 स्क्वायर किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं बोमास। देखो बोमास पहले क्या उसको हम समझते हैं, फिर न्यूज देखेंगे। दैट इज, आई एम सो सॉरी, माय थॉट इज नॉट गुड टुडे। आई एम सेइंग दैट 11 चीतास जो है वो हमने किए ट्रांसलोकेट। एक
स्पेशली डेजिग्नेटेड कर दिया एरिया कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। और उस एरिया का नाम मैंने क्या दे दिया, बोमास, ताकि यहाँ पे ये फ्रीली आपस में घूमे, सरवाइव करे और अपना जो नंबर है उसको बढ़ाए इंडियन कंडीशन में। देखो अफ्रीकन कंडीशंस अलग है, वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है दे आर डिफरेंट। इफ वी आर लोकेटिंग देम फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया, दैट मीन्स उनको जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अलग मिलेगी। तो हमने क्या किया, स्पेसिफिकली बोमास करके जो रीजन है वो डेजिग्नेट कर दिया कूनो नेशनल पार्क में, और यहाँ पे अब हम उनको कंडीशन दे रहे हैं कि आप ग्रो करो। तो इन 11 में से जो 5 है, 5 ऑफ द ट्रांसलोकेटेड एनिमल्स एंड 3 ऑफ द 4 कब जो है वो उनकी डेथ हो गई, यानी कि 5 चीता मर गए हैं। तब जो उनके छोटे बच्चे होते हैं 4, उनकी डेथ हो गई है। अब इस डेथ का रीजन बताया जा रहा है रेडियो कोलर फिटिंग। इट्स अ थियरी गिवन कि हो सकता है कि उनके गर्दन पे जो रेडियो कॉलर फिटिंग लगाई है उनकी वजह से डेथ हो गई, जिसको पूरी तरह से नकार दिया गया और इसलिए मेडिकल रिव्यू के लिए भेजा गया। लेकिन ये रेडियो कॉलर फिटिंग है क्या? देखो ये जो जानवर होते हैं ना, उनकी जो नेक होती है वहां पे एक बेल्ट जैसा कुछ बांध दिया जाता है, इसके ऊपर हम लगा देते हैं रेडियो ट्रांसमीटर और जीपीएस डिवाइस। यानी ये जंगल में कहीं पे भी जाते हैं, ये कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, उसको आप मॉनिटर कर सकते हो रिमोटली दूर बैठे हुए, ठीक है। तो दिस हेल्प्स यू इन द स्टडी। अब इसको बोला गया है कि जो सूर्या, सूर्य एक निक नेम है चीता का, देखो उनको नाम दिए जाते हैं। तो सूर्या जो है चीता का निक नेम है, पिछले हफ्ते उसकी डेथ हो गई है कूनो नेशनल पार्क में। और जो वेटरिनरी है यानी कि जानवरों के जो डॉक्टर है वो ये कह रहे हैं कि ये जो एनिमल है उनको एक ऐसा देखने को मिला कि घाव हुआ है गर्दन के ऊपर, जहाँ पे मैगॉट करके ऑर्गेनिजम्स होते छोटे छोटे चीजें, उन्होंने इंफेक्शन कर दिया है। और ये जो मैगॉट का जो लार्वा है, वो जो आपने रेडियो कॉलर फिटिंग करी है ना चीता की नेक पे, वहां पे मिला है। तो हो सकता है कि tapping from the collar may have indirectly sickened the cheetah. The collars that cheetahs wear are made from polystyrene and equipped with a radio frequency, while ideally expected to not interfere with the internal movement of these animals. तो अब जो डॉक्टर्स उनका क्या कहना है कि जो अफ्रीकन चीता है वहां पे वो मॉनसून को लेके अडॉप्टेड नहीं होते, लेकिन इंडियन कंडीशन में अभी जो पिछले हफ्ते है या पिछला पूरा एक महीना ये मॉनसून का टाइम है, यहाँ पे उनको बारिश का टाइम मिला होगा, और यहाँ पे जब बारिश होती है, ओके, तो उन्होंने ये क्या करते हैं, अपनी टंग से लिक ऑन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो भी कचरा होता है वो साफ करते हैं। बट जो यहाँ पे जो कॉलर लगाई है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, वो नहीं कर पाए, और जो मैगॉट का इन्फेक्शन हुआ उसको वो नहीं साफ कर पाए ड्यू टू द कॉलर, एंड अल्टीमेटली दे गॉट सिक बिकॉज ऑफ इट एंड दे डाइड। So this is a theory given by the doctors that coupled with the moisture from the monsoon season, something that South African cheetahs are not acclimatized to, that animal may have been unable to lick itself clean, which allowed the parasite to fatally lodge inside the wound. There are the veteran forest officers who say that radio collaring is an extremely common practice in India. Among the lions, tigers, leopard, never have they been linked to any such infections. But ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेडिकल रिव्यू करेंगे। एक और जो हाइपोथेसिस है वो ये दे रखा है कि यहाँ पे जो अफ्रीकन एनिमल्स है वो पैरासाइट को लेके एक्सपोज हो गए होंगे, इंडियन बैक कैट्स यूजुअली रेजिस्टेंट टू। जैसे कि इंडिया के अंदर जो बिग कैट फैमिली के जो जानवर होते हैं, जैसे कि शेर हो गया, आपके पास लायन हो गया, तेंदुआ हो गया, बब्बर शेर, या जो भी ये है, इन सब के पास बॉडी में एक रेजिस्टेंस होता है पैरासाइट से लड़ने के लिए। लेकिन अफ्रीकन चीता जो है जब इंडिया में लेके आया तो हो सकता है उनकी बॉडी जो है उन पैरासाइट के लिए रेजिस्टेंट नहीं थी, पैरासाइट था हार्मफुल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पे क्या हो रही है, रिव्यू के बारे में बात हो रही है, दैट इज द मेडिकल रिव्यू। अभी कुछ डेटा है कि जैसे ही सूर्या की डेथ हुई थी उससे 2 दिन पहले तेजस जो चीता है उसकी भी जो डेथ है वो मिली है, कि उसको एक फीमेल चीता ने अटैक कर दिया। बाय ऑफिशियल वर्जन गोज टू चीता डाइड इमीडिएटली। फिर इनके बाद क्या होता है, 4 कप की जो डेथ है वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिली। फिर एक एडल्ट फीमेल है, उनका नाम है दक्षा, देखो इनके नाम रखे जाते हैं, ठीक है, एंड एडल्ट फीमेल दक्षा, उसकी भी यहाँ पे क्या हो गई, डेथ हो गई है। फिर 2 और जानवर जैसे साशा एंड उदय, इनकी डेथ हुई आपके पास फरवरी में और अप्रैल में फ्रॉम द रीनल इन्फेक्शन। रीनल इज अ वर्ड रिलेटेड टू द किडनी, cardiovascular problems. So alarming as it may seem, experts say that cheetah cub in the wild have a very mortality
हाई mortality rate related to the tigers and lions. क्लियर? तो अब देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट चीता है कितना सक्सेसफुल है। इसमें क्या बोला गया है, राइटर ये बोलना चाह रहा है कि ये जो आपने चीता का प्रोजेक्ट किया है वो अच्छी बात है, लेकिन ये एक तरह से फेलियर है क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही बेसिक फ्लॉज देखने को मिलते हैं। कैसे? इफ यू आर सेइंग कि हमको 20 के 20 जो चीता को कूनो नेशनल पार्क में लाना, तो ये तो ब्लंडर है। आप ये भी कर सकते थे कि 10 चीता को इस नेशनल पार्क में लेके और 10 को किसी और नेशनल पार्क में लेके जाओ, ताकि हमको एक आइडिया लगे कि नहीं, यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से सर्वाइव, हम यहाँ पे ये नहीं सर्वाइव कर पा रहे। आपने सारा ही एक ही कूनो नेशनल पार्क में उनको लेके आ गए, तो अगर वहां कोई प्रॉब्लम है तो वो सारे की सारी चीजें एक साथ मर जाएंगे। तो दिस इज लाइक अ लूप होल, दिस इज लाइक अ बेसिक फ्लॉ इन द प्रोजेक्ट। क्लियर? अब देखते हैं टाइगर, लेपर्ड और चीता, इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, लेपर्ड को आप हिंदी में बोल सकते हो तेंदुआ। तेंदुआ की खासियत क्या होती है, इनके पास जो पूंछ होती है वो स्टॉकी और ट्यूबुलर होती है। इस तरह से इनकी आपको पूंछ मिलेगी, जिसकी वजह से ये जो पूंछ है ये अपने ही वेट को काउंटर कर देती है, और जब वेट को काउंटर कर देती है तो ये पेड़ पे बहुत ऐसे तुरंत चढ़ जाते हैं। तो जैसे किसी पे ये प्रे पे हमला करती है तो अपना ये खाना लेके तुरंत पेड़ पे चढ़ जाता है और बाकी एनिमल्स उसको नीचे से बस काटते रहते हैं। So this is the main difference of specific characteristics of the leopard, that their tail is more stocky and tubular, which act like a counterweight and help the animal climb up the trees and to drag their kill upper trees. Other obvious difference क्या है कि जो चीता है उनके ऊपर आपको इस तरह से ब्लैक व्हाइट स्पॉट दिखेंगे, जबकि आपके पास जो लेपर्ड है वहां पे इरेगुलर रोज शेप स्पॉट जो है वो मिलेगा आपको। ठीक है? तो टाइगर्स और लेपर्ड के अगर कंपेयर में देखें तो चीता थोड़े से डेलिकेट एनिमल्स होते हैं, लेकिन उनकी भागने की स्पीड बहुत तेज होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन इन द न्यूज। देखो, पहला जो एडिटोरियल है उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा फॉर द चीता। ओके, सो आई एम गिविंग अ होमवर्क। फाइंड द IUCN स्टेटस फॉर द चीता, फॉर द टाइगर, लायन एंड स्क्वेरल। देखो, स्क्वेरल क्यों पूछा है, इसका एक रीजन है कि इस बार के प्रीलिम्स में ये पूछा गया है। दूसरा, ये भी भाई पेड़ पे फटाक से चढ़ जाती है, तो इसके क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन भी कुछ इसी तरह के आए थे। तो टुडेज होमवर्क इज यू विल फाइंड द IUCN स्टेटस फॉर चीता, फॉर टाइगर, फॉर लायन एंड फॉर स्क्वेरल। Now coming to the next editorial, which says that a bill that fences in the Right to Information Act, मॉनसून सेशन आ रहा है पार्लियामेंट को, 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और बहुत से बिल हमने डिस्कस किए जो कि डिस्प्यूटेड है। सिमिलरली एक और बिल है जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है कि इस बिल के अंदर, जिसकी फाइनल कॉपी है अभी पब्लिक में नहीं आई, लेकिन उसमें दो प्रोविजन ऐसे हैं, अगर वो नहीं हटे तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है सिटीजन का, वो पूरी तरह से एक तरह से नलीफाई हो जाएगा। इट इज नॉट फॉर गुड फॉर द सिटीजन इन अ कंट्री लाइक अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो राइट टू इंफॉर्मेशन किस बिल के बारे में बात हो रही है, ये देखो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपके पास 3 सेशन तो होते ही होते हैं कम से कम। उसका जो मॉनसून सेशन है वो अभी स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई को। ठीक है जी, 20 जुलाई को ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक बिल की बात हो रही है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसके दो प्रोविजंस हैं जो कि पूरी तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन को वीकन कर देंगे। कैसे करेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले देखते हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो क्या होता है। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसके अंदर रूल्स और प्रोसीजर्स है कि किस तरह से सिटीजन जो है अपनी इंफॉर्मेशन को ले सकता है, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। इससे पहले 2002 में आपके पास होता था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको रिप्लेस करके आपके पास क्या आया, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन सिटीजन को चाहिए तो आप उसके लिए फीस दीजिए, 1 रुपया 2 रुपया, और आपको वो इंफॉर्मेशन जो मिल जाएगी। इसके प्रोविजन क्या बोलते हैं, that citizens have a right to seek information from the public, देखो ध्यान से, from the public authority। अब ये पब्लिक अथॉरिटी क्या है वो डिफाइन किया था, पिछले साल भी ये न्यूज में था, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट बॉडीज, जिसमें हमने बोला था कि जो CGI है, लास्ट टाइम भी कुछ ऐसी न्यूज थी कि CGI जो पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आते, तो तब पब्लिक अथॉरिटी को बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया था। तो मैं रिक्वेस्टेड, ये जो पब्लिक अथॉरिटीज है, अगर इन पब्लिक अथॉरिटी को आप रिक्वेस्ट करते हो कि हमको इस फलाना टॉपिक पे या इस जो केस उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दे आर बाउंड
उनको मैंडेटरी वो इंफॉर्मेशन सिटीजन को देनी ही पड़ेगी 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आज की डेट में इफ आई रिक्वेस्ट द पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ आरटीआई, तो 30 डेज के अंदर अंदर उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और सारी पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश द इंफॉर्मेशन डिजिटली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सिटीजन। लेकिन अब इसमें कुछ एग्जाम्पन्स है। ये जो इंफॉर्मेशन की कैटेगरी है, इसमें क्या बोलते हैं कि जो डिस्क्लोजर टू प्रिवेंट हार्म टू सर्टेन इंटरेस्ट एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, तो कुछ चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसको आप पब्लिकली नहीं दे सकते इंफॉर्मेशन। यह आरटीआई की सेक्शन 8 में क्लॉज 1 में आता है, जो कि ए से लेके जी में इसके कुछ सब सेक्शन लिखे हुए हैं, 10 सब सेक्शन। तो सबसे ज्यादा वाइडली जो मिसयूज हुआ है वो सबसे लास्ट वाला सब सेक्शन है, सेक्शन क्लॉज 8 सब क्लॉज 1 सब सेक्शन जे। ये क्या कहता है? इट एग्जेम्प्ट द पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको एग्जेम्प्ट करता है, जो कि पब्लिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, और विच इज एन इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन कह के किसी भी पर्सनल अथॉरिटी के मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, है ना। मान लो कि जुडिशरी पब्लिक अथॉरिटी, लेकिन आप पर्टिकुलर जज की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होगी दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पब्लिक एक्टिविटी एज इट इज एन इन्वेजन ऑन द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए एक भाई टेस्ट है, ऐसे टेस्ट क्या? To help anyone claiming exemption, that provided that the information which cannot be denied to the parliament or state legislature shall not be denied to any person. तो अब इसके लिए क्या बोला गया कि अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए, रूल क्या कहता है, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन सिटीजन को नहीं दे सकते कि वो राइट टू प्रिवेसी को हो रहा है, तो वो पार्लियामेंट में भी नहीं देंगे, आप वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी नहीं देंगे। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जा रहा है तो वो सिटीजन के पास भी जाना चाहिए। तो दिस इज लाइक एन एसिड टेस्ट। क्लियर है? So to help an officer, an information commissioner or a judge to arrive at the right decision, the special provision was provided as an ethic test. तो इस प्रोविजन को यहाँ पे क्या है, अमेंड करने के बारे में बात हो रही है। तो जब इसका ये पब्लिकली आ जाएगा हम इसको और डिटेल में हम डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन ये जो राइट इंफॉर्मेशन है उसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? उसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, वेर वी सी दैट इट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जहाँ पे लोगों को खुद को उठा के अपने लीडर्स को चूज करने का फ्री है, लिबर्टी है। तो ऐसे कंट्री में ये आपके पास जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, आरटीआई का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है कि सिटीजन को इन्फॉर्म होना जरूरी है, गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, गुड गवर्नेंस। ठीक है, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस का पोर्शन है। इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या करेगा, एफिशिएंट गवर्नमेंट करवाएगा, प्रिजर्विंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी इंकरेज करेगा, अकाउंटेबिलिटी करेगा, गारंटी करेगा। क्लियर है? बट क्या ये आरटीआई एफआर है, यानी फंडामेंटल राइट है? जी बिल्कुल है। आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 का पार्ट, विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें फ्रीडम के अंदर इंफॉर्मेशन रिसीव करना भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। Now coming to the third topic, रुपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम। इसको हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो विजिट करके आए हैं यूएई में, वहां पे उन्होंने क्या, दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर दो अग्रीमेंट साइन किए, जिसमें एक है कि दोनों कंट्रीज आपस में जो लोग ट्रेड है वो लोकल करेंसी में करेंगे। तो अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो फॉरेक्स है, वो इनका इंक्रीज होगा। तो वो इनको हेल्प करेगा कि थर्ड पार्टी पे उनको डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, तो इसके जो बेनिफिट्स है, रिस्क है, वो दोनों आज के एडिटोरियल में दे रखे हैं, आप उसको समझ सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी हम कर चुके हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आप पहले वीडियो जो है शाहबानो केस का वीडियो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर देख सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी सेपरेट वीडियो आप उसको देख सकते हो। तो व्हाट इज दिस केस? ये आपके पास क्या है, इंडिया के अंदर एक होता है सिविल कोड और एक होता है आपके पास पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉज जो है वो क्या कहता है कि आपके पास जो मैरिज है, जो डाइवोर्स है, जो प्रॉपर्टी असेशन है, वो सब रिलीजन के लिए अलग है और सिविल कोड भी सबको अलग है। इसको हटा के यहाँ पे पर्सनल लॉज को हटा के कॉमन सिविल लॉ लाने की यहाँ पे बात हुई। ठीक है, इसको समझते हैं ध्यान से। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आज मैंने मर्डर किया, हिंदू ने मर्डर किया, क्रिश्चियन ने मर्डर किया, किसी ने भी मर्डर किया, तो पनिशमेंट सेम होगी। लेकिन मुस्लिम मैरिज कर रहा है, हिंदू मैरिज कर रहा है, क्रिश्चियन मैरिज कर रहा है, तो रूल्स अलग है।
तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके पास जो सिविल कोड है, क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड है, वो सबके लिए सेम है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है अभी तक नहीं आया, बिकॉज उसमें पर्सनल लॉ को हटा के हम एक लॉ को लाने के बारे में यहाँ पे बात करें. So this we had already discussed. Please watch my previous video on this. I hope today's editorials are absolutely clear. लेकिन I want to say one more thing that अगर कोई भी editorial repeat होता है तो आप उस टाइम को utilize कर सकते हो. Why? Because आप GS के उस टाइम पे फोकस कर सकते हो. Okay? So thank you so much. Hope you like the video.